جب میں بیاہ کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر فرحان نے پہلی ہی رات کہا کہ نسیم خانم، تم جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو مجھ سے ضرور مشورہ کر لینا، میں جس بات سے منع کروں اس پر اصرار مت کرنا، اسی طرح زندگی اچھی گزرے گی۔ میں نے ان کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی، کیونکہ میں خود کو بہت عقل مند اور دوسروں کو معمولی سمجھتی تھی۔ یہ میرے والدین کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میرے شوہر فطرتاً خاموش مزاج انسان تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا جس کی آمدنی سے بخوبی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ شادی کے وقت میری عمر صرف 17 برس تھی۔ سارا دن کبھی ہمسایوں کے ہاں، کبھی سہیلیوں کے گھر اور کبھی خالہ زاد بہنوں کے پاس وقت گزارتی۔ میری ساس مجھ سے ڈرتی تھی کیونکہ میں زبان دراز تھی اور منٹوں میں بڑوں کی بے عزتی کر دیا کرتی تھی۔ میاں سمجھاتے رہتے کہ گھر پر رہا کرو، دوسروں کے گھروں میں روز روز جانے سے اپنی عزت کم ہو جاتی ہے، مگر میں نہ مانتی۔ میں کہتی کہ میرا دل گھر میں نہیں لگتا تو کیا کروں، گھر کا کوئی کام میں نہ کرتی تھی۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے کبھی شکایت نہ کرتی کہ کہیں الٹی شکایت میرے سر نہ آ جائے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی ماں بنایا۔ ہم نے اس کا نام ایان رکھا۔ چھوٹے بچوں کی طرح وہ راتوں کو جاگتا مگر میں نیند کی رسیا تھی۔ شوہر دن بھر دکان پر کام کرتے اور رات کو تھکے ہارے گھر آتے۔ ساس ان کو کھانا دیتی اور جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آتے تو میں کہتی کہ تمہارا بیٹا رات کو بار بار جاگتا ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، میں نے اس کے لیے فیڈر لگا دیا ہے، تم اسے ماں کو دے دیا کرو تاکہ جب جاگے تو وہی پلا دے، مجھ سے بار بار نہیں اٹھا جاتا۔ فرحان کہتے کہ ماں بوڑھی ہے، وہ دن بھر کام کرتی ہے، اگر رات کو بھی بچے کے لیے جاگتی رہے گی تو بیمار پڑ جائے گی، تم نہیں اٹھ پاؤ گی تو میں اٹھ جاؤں گا، لیکن امی کو تکلیف نہ دو۔ یوں وہ خود رات بھر جاگتے، بچے کو سنبھالتے، جبکہ میں مزے سے سوتی رہتی۔ دن کو دکان پر کام، رات کو جاگنے سے ان کی صحت خراب ہونے لگی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے کچھ نہ کہتے۔ وہ میرے آرام کے لیے اپنی راحت قربان کر دیتے تھے۔ ایان کو سانس لینے میں دشواری رہتی تھی، اسی لیے وہ پوری رات جاگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایان کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، پھر ایک کے بعد ایک بچے ہوتے گئے، یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ اب میری مصروفیت بچوں میں ایسی بڑھی کہ باہر نکلنے کا موقع ہی نہ رہا۔ میاں کی آمدنی بچوں پر خرچ ہو جاتی، گھر کا خرچ بمشکل پورا ہوتا۔ جب تک ساس زندہ رہیں انہوں نے سگی ماں کی طرح میرا ساتھ دیا۔ حقیقت میں میرے بچوں کو انہوں نے ہی پالا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بچے چھوڑ کر کہیں نکل جاتی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بیٹا ایان نہایت لائق اور بااعتماد تھا۔ FSC کے بعد اس نے ڈپلومہ کیا تو ایک دوست کے ذریعے جرمنی جانے کا موقع ملا۔ وہاں جا کر اسے بہت پسند آیا۔ مستقل رہائش کے لیے اس نے ایک جرمن عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ پاکستان آیا تو اپنی جرمن بیوی کو ایک ننھے سے بیٹے کے ساتھ آیا۔ میری بہو بہت شریف با اخلاق عورت تھی، میرا ادب کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں غیر ملکی بہو کو دیکھ کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ میں نے بیٹے کو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنی عمر سے بڑی غیر مذہب عورت سے شادی کر لی، تم نے میری اجازت کا خیال بھی نہ رکھا، اب اسے طلاق دو۔ ایان کسی طور راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ امی میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ میرا گھر، میری زندگی ہے۔ فرحان مجھے سمجھانے لگے کہ نسیم ایسا نہ کرو، بیٹے کا ہنستا بستا گھر مت اجاڑو، بہو غیر ملکی ہے تو کیا ہوا، وہ اچھی عورت ہے، اخلاق والی ہے، وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہے اور تم اس کی طلاق کروانا چاہتی ہو، کم از کم اپنے پوتے کا خیال تو کرو، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، انہیں وہیں آباد رہنے دو، جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں انہیں ویسے زندگی جینے دو۔ مگر میری سوچیں ہی عجیب تھیں۔ کوئی خیال دماغ میں سما جاتا تو پھر اسے نکالنا میرے بس کی بات نہیں رہتی تھی۔ میں نے رو رو کر دن رات ایک کر دیا اور ایان سے کہا کہ اگر تم نے اس فرنگی کو طلاق نہ دی تو میں تمہیں بددعائیں دوں گی۔ میرا بیٹا بیچارہ چکرا گیا، آخرکار اسے میری خواہش پوری کرنا پڑی۔ ہم ماں بیٹے کے درمیان ہر وقت جھگڑے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر جرمن بہو پریشان ہو گئی۔ بالآخر ایان نے اسے بتا دیا کہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور پاکستان میں رہ جاؤں۔ اس نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہوں؟ اس نے صاف کہا کہ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں
रहना पसंद नहीं करूँगी। आप तो अपनी माँ से मिलने आए थे और वादा किया था कि हम जल्द वापस जर्मनी लौट जाएंगे। अब अपना वादा निभाओ या मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। अयान ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपनी ज़िद पर कायम रही। मैंने कहा कि तुम अब वापस नहीं जाओगे वरना मैं जहर पी लूँगी। मैं माँ हूँ, मेरा हक है कि जिस बच्चे को पाला पोसा, इसे अपना सहारा समझा, वो मुझे छोड़कर चला जाए, ये मैं गवारा नहीं कर सकती। यूं वो 2 कश्तियों का सवार मेरा बेटा बीच मंझधार में डूब गया। मेरी जर्मन बहू मेरे रोने पीटने से घबराकर अपने बेटे को लेकर वापस चली गई। इसने खुद ही अयान से तलाक ले ली ताकि वो मुझे राज़ी रख सके और मेरे पास रह सके। इसका ये कदम मेरे लिए वक्ती खुशी का बाइस तो बना, मगर अयान बहुत दिनों तक परेशान रहा। मगर चूँकि मेरे कहने के सिवा इसके पास कोई चारा न था, इसने मेरी खुशी के लिए मेरी भांजी सनोबर से शादी कर ली और वतन में रहना कबूल कर लिया। वो 1 साल पाकिस्तान में रहा, मगर माकूल रोज़गार ना मिल सका। बाप की दुकान पर बैठने से इसका जी उकता गया। तब इसके ससुर ने अपने बेटों के ज़रिए इसकी दुबई का वीज़ा लगवा दिया और वो वहाँ चला गया। वहाँ इसके सालों ने इसे अपने कारोबार में शामिल कर लिया और बाद में अपनी बहन यानी अयान की बीवी को भी दुबई बुला लिया। इन्हीं दिनों मेरी बेटी गुलनाज के लिए रिश्ता आया। मैं चाहती थी कि इसकी शादी किसी खूबसूरत नौजवान से हो। हालांकि कई अच्छे और शरीफ घरानों से रिश्ते आए थे, मगर मैंने आला ख़ानदान और शराफत के बजाय सिर्फ खूबसूरती को तरजीह दी। तभी गुलनाज के लिए एक नहायत खूबसूरत नौजवान का रिश्ता आया जिसका नाम बुलंद इकबाल था। पहली नज़र में ही मुझे वो नौजवान बेहद पसंद आया और मैंने रिश्ता मंजूर कर लिया। मेरे शौहर ने समझाया कि यहाँ रिश्ता मत करो, इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, ना कोई पड़ोसी इन्हें जानता है, ये मोहल्ले में नए किराएदार हैं। मगर मैंने इनकी ज़ाहिरी टिप टॉप देखकर समझा कि खाते पीते लोग हैं और ज़िद में आकर बेटी को ब्याह दिया। मियाँ मना करते रह गए और बाद में बहुत पछताना पड़ा, क्योंकि शादी के 1 माह बाद ही वो लोग मेरी बेटी को लेकर कहीं चले गए और हमें कोई इत्तला तक ना दी। 2 साल तक हमें इनके कुछ पता ना चला। आखिर एक दिन गुलनाज का ख़त आया। इसने लिखा कि माँ, तुमने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया है। ये लोग औरत की कमाई खाने वाले हैं। मुझ पर सख्त पाबंदियाँ हैं और ये ख़त भी मैं बड़ी मुश्किल से लिख रही हूँ। ख़त पढ़कर मेरा खून खौल गया, मगर मैंने वो ख़त अपने मियाँ से छुपा लिया, क्योंकि अगर वो जान लेते तो मेरी खैर ना होती। मुझे यकीनन वो मुझे तलाक दे देते। फिर मेरी औलाद का क्या बनता। मैं अपनी खुदसरी पर बहुत पछता रही थी। मेरी नादानी ने बेटी को अजाब में डाल दिया, मगर अफसोस अकल फिर भी ना आई। दूसरी बेटी माँ जबीन की शादी भी एक खूबसूरत नौजवान से कर दी। अलबत्ता इसके ख़ानदान के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल की। वो लोग नहायत मजहबी और सख्त मिजाज थे, जबकि माँ जबीन शौक, चंचल, आज़ाद ख्याल और फैशनेबल थी। शौहर सख्त गिर निकला, जिसने इसे जिंदा दिल से मुर्दा दिल बना दिया। वो इसे पर्दों में रखता, 4 दीवारियों से कदम बाहर निकलने की इजाज़त ना देता। मैं के आने पर भी पाबंदी थी। ख़ास तौर पर वो मेरी बेटी को जितलाता कि तुम्हारी माँ खुदसर औरत है और मुझे इसका मिजाज बिल्कुल पसंद नहीं। इन्हीं दिनों मेरे मंझले बेटे जुनैद ने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की से मरासम बढ़ा लिए। फिर दोनों चंद दिनों के लिए कहीं दूर चले गए। एक दिन एक शख्स ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि आपकी बेटी महजमी की हालत बहुत ख़राब है। इसका एक्सीडेंट हो गया है। आपका दामाद भी शदीद ज़ख्मी है। वो दोनों फलां अस्पताल में हैं। जल्दी आपको बुलवाया है। मैंने शोहर के आने का भी इंतज़ार न किया और ख़बर सुनते ही अकेली इनके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक खाली मकान में ले गए, मेरे साथ ज़्यादती की और वीडियो बना ली। कहा कि ये है तुम्हारे गरूर का बदला। हमारी बेटी को तुम्हारे बेटे ने अगवा किया, कई दिन अपने पास रखा, इसको बेआबरू किया, जबकि वो 16 साल की है। नासमझ बच्ची थी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब तुम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब तुम दफ़ा हो जाओ। मैं रोती हुई घर आ गई, किसी को इस वाक़े का हवा भी ना लगने दी कि मेरी ही बदनामी
थी। इन्हीं दिनों एक लड़की मेरे पास आई और बोली, तुम्हारे बेटे फहद ने मेरे साथ ज्यादती की है, जिसकी वजह से मेरे बदनामी के दोराहे पर खड़ी हूँ। खुदा के लिए मुझे बचा लो, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। एक बेटे की ज्यादती का खमियाजा भुगत चुकी थी, तभी इस दूसरी पर मुझे रहम आ गया, क्योंकि मैं खुद ज़ख्म खुर्दा हो चुकी थी। अब एहसास हुआ ऐसे नाजुक मामलात में औरत बेचारी की जान पर बन जाती है, जबकि ज़माना इसके दुख को नहीं समझता और इसे बेकसूरवार ठहराता है। मैंने परवीन को तसल्ली दी, वादा किया कि तुमको अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। पहले शौहर से बात कर लूँ। मैंने किसी को परवीन की हालत के बारे में ना बताया, सिर्फ ये कहा कि एक मिलने वाली ने रिश्ता दिखाया है, मुझे लड़की पसंद आ गई है। फहद से शादी के लिए मैंने परवीन के घर वालों को हाँ कह दिया है। खुद मेरे बेटे को भी इल्म ना था, मगर इसने मेरा मान रखते हुए मेरे फैसले को मान लिया। मैंने इसको इसके लिए परवीन के बारे में ना बताया कि वो मुझे मिली थी, कहीं वो शादी से मना ना कर दे और पहली वाली लड़की की तरह इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। फहद शरीफ तबीयत और फर्माबरदार था। इसने इतना भी ना सोचा कि मुमकिन है ये लड़की झूठ बोल रही हो। बेटे से पूछ तो लूँ कि तुम परवीन नामी लड़की को जानते भी हो या नहीं। बस इसके वालिदैन से रिश्ते की बात की और झट मंगनी पट बिया कर डाला। परवीन को बहू बनाकर घर ले आई। मेरे शौहर हैरान थे कि ये मुझे क्या हुआ है कि मैं एक गैर मज़हब की लड़की जो नर्स है और फहद से बड़ी है, इसको बहू बनाकर ले आई। आखिर इस मामूली शक्ल व सूरत की लड़की में ऐसी क्या खूबी है कि मैंने इससे मशवरा भी नहीं किया। उधर शौहर मेरी मनमानियों पर हैरान, उधर फहद मेरी खुशनुदी की खातिर चुप, और मैं समझ रही थी कि मेरा साहबजादा अपने करतूत की वजह से चुप है। लेकिन अव्वल शब ही जब फहद को ये एहसास हुआ कि परवीन पहले ही कहीं अपना जेवर असमत खो आई है, तो इसे बहुत रंज हुआ और अगली सुबह हमारे बेदार होने से कबल घर छोड़कर चला गया। मैंने भी चुप साध ली, ज़बान खोलती तो खुद बदनाम होती। आखिर इस लड़की की मिन्नत समाजत की तो इसी ने इस राज से पर्दा उठाया कि इसे दरअसल एक पुलिस वाले ने धोखा दिया था, लेकिन बदनामी से बचने के लिए इसने मेरा सहारा लिया। वो बोली, मैं फहद को यूँ जानती थी कि वो मेरे कज़न का दोस्त है। मैं इसको देख चुकी थी कि वो सीधा साधा शरीफ लड़का है। सोचा इसकी माँ से मिलती हूँ और कहानी बनाकर रहम की भीख मांगती हूँ, मुमकिन है बात बन जाए। और बात बन गई। गोया अपनी जान बचाने की खातिर इसने मेरे लड़के की शराफत का सहारा लिया था और मैं नादान बगैर बेटे से तस्दीक किए इसकी चालाकी के जाल में फंस गई। जब मैंने फरहान को बताया, वो तो रोने लगे। बोले, आखिर तुम्हारी मनमानियाँ हमको जुल्मत के समंदर में कहाँ तक ले जाएगी। मैंने पहले रोज़ ही तुमसे कह दिया था कि जो फैसला करना मेरे मशवरे से करना, मगर तुमने अब तक अपनी मर्ज़ी करती रही हो, किसी से मशवरा लेने की जहमत तक गवारा नहीं करती। अब देखो, हर फैसला ही तुम्हारे गलत रहा। अपनी औलाद को जहन्नुम में झोंक कर भी तुमको ये एहसास नहीं होता कि तुम कर क्या रही हो। ये है तुम्हारी खुद पसंदी की इंतहा। मेरा बेटा तो लौट कर कभी वापस न आया, मगर उस नर्स ने किसी और का तोहफा हमारे घर में जन्म दिया और मैं खामोश रही। इस गम ने मेरे शौहर को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। वो बीमार रहने लगे और 2 ही बरस के अंदर ही ये दुनिया छोड़ गए। मैंने 2 साल सब्र किया, मगर आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक दिन मैंने परवीन से कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपना शौहर और बेटा दोनों खो दिए हैं। तुम पर तरस खाने की मुझे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। बेहतर है कि अब तुम अपना बच्चा लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं अब मज़ीद नेकी नहीं कर सकती। अगर तुम ना गई तो मैं सब कुछ जाहिर कर दूँगी। परवीन भी अब मज़ीद नेक परवीन बनकर हमारे घर में नहीं रह सकती थी। उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसके बच्चे को मेरे बेटे का नाम मिल चुका था, लिहाजा वो खामोशी से अपना सूटकेस उठाकर हमारे घर से चली गई। अपनी ही नादानियों ने मुझे इसे गम दिए कि मैं खुद को कसूरवार ठहराने लगी। सबसे गहरा ज़ख्म तो मेरी बड़ी बेटी का था, जो जीते जी मुझसे बिछड़ गई। मैंने अपने शौहर से गुलनाज का ख़त छुपा लिया था, मगर वो राज मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता रहा। मैंने
اس کے دیے گئے پتے پر بہت تلاش کروایا مگر وہ لوگ وہاں سے کہیں اور جا چکے تھے۔ آج میں ایک رفاہی ادارے میں ہوں جسے لوگ اولڈ ہوم کہتے ہیں۔ یہاں آ کر میں نے سمجھا کہ انسان اپنے اعمال، اپنی ضد اور اپنی خود سری کی سزا خود ہی بھگتتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو خود سے کم عقل سمجھا اور یہی غرور مجھے یہاں تک لے آیا۔